Hello everyone, this is Misfa from Khawateen Rozgar Services and I welcome you all to the Job Seeker series by Khawateen Rozgar Services. We have Ali Mansoor with us today, who is working as the Senior Talent Acquisition Specialist at Standard Chartered Bank and was formerly working with Bank Al Falah. He belongs to Lahore. With his vast experience in talent acquisition, succession planning, and organizational development, we will be able to get some very useful insights for the job seekers today. So hello, Ali. It's great to have you on our podcast series today. Kindly briefly introduce yourself. Hi, Mishpa. Thank you very much. First of all, I would really, be grateful to you for considering me for this opportunity and, being enabling me to, share my thoughts and my experiences with the people out there. And I hope they can really benefit from this. So, Mishpa, it's been like 13 years of experience. Currently, like you've already told, I'm working with Standard Chartered, and before it was Bank Al Falah. And Yeah. then, before this, I had an opportunity to work in a multinational company in England as well. Mm-hmm. So, it's been a really good journey so far, but HR, the field of the HR, it has evolved in the past decade. We used to be a very, transactional based HR about 10 years ago. And, we used to call ourselves paper tiger, to be honest. So Yeah. with the passage of time, those things have changed. Technologies and softwares, they are being introduced in the market. And we actually need to stay abreast with the upcoming technologies so that we don't get outdated from the market. So I'm also one of the fraternity who's actually trying to make up his way out through these difficult times, be it technology, be it pandemic, be it other global challenges. So that's it, pretty much like it. Yeah. Yeah. So even in England, you were working in the field of HR? No, it was basically a logistics company. It's Okay. Lloyd's Marine Intelligence Unit. Yeah, so they actually used to work on vessel movements. So it Yeah. was a good experience, but that was related to marketing. Okay, so Ali, starting with that, what is the biggest gap that you have noticed जो कि current graduates में है and the kind of employees that the organizations are really looking for? अच्छा मिसबा इसके अंदर ये है कि आई वुड से कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरा पेन पॉइंट है। Mm-hmm. मैं जब एचआर में काम कर रहा हूँ तो आई एम नॉट देयर डूइंग माय जॉब 9 to 5। मैं मेरे कोलीग्स हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में वर्कआउट करते हैं। वी एक्चुअली वांट टू बी मेंटोर्स एंड द काउंसलर्स ऑफ द पीपल एज वेल जो हमारे पास वॉक इन एम्प्लॉयज आते हैं। तो मेरे Mm-hmm. साथ आप ऑनेस्टली बिलीव करें कि अक्सर ये होता है कि जब मैं इंटरव्यूज लेता हूँ Yeah. और मुझे उसके बाद कोई गैप नज़र आता है तो मैं इतना टाइम इंटरव्यू में नहीं लगाता जितना टाइम मैं बाद में कैंडिडेट को फीडबैक देने में लगाता हूँ। सो Okay. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त मैं फेस कर रहा हूँ वो है पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर देयर इंटरव्यूज। दे डोंट डू एनी रिहर्सल, दे Hmm. जस्ट वॉक इन। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर लाइक लुकिंग फॉर जॉब, सो दे विल सिंपली वॉक इन। और अगर वो एक स्केड्यूल्ड इंटरव्यू में भी आ रहे हैं, नॉर्मली हम ही अगर कैंडिडेट्स को अप्रोच करते हैं थ्रू Yeah. वेरियस प्लेटफॉर्म्स, Yeah. तो भी दे दे व्हाट आई रियलाइज ड्यूरिंग द इंटरव्यूज उन्होंने रिहर्सल नहीं की हुई। अच्छा, अब Hmm. यहाँ पे गैप ये है कि जब हम रोल्स ब्रॉडकास्ट करते हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होती है। Yeah. उस जीडी को गो थ्रू करना और फिर रेलेवेंस डेवलप करना, रिहर्सल करना, प्रिपेयर होकर आना बहुत इम्पोर्टेंट है। Hmm. क्योंकि कैंडिडेट्स इंटरव्यू के बाद आई एम श्योर दे रियलाइज के वी विश के हमने इस सवाल का ये जवाब दे दिया होता। Yeah. उस वक्त में इंटरेस्टेड नहीं होते, थॉट्स गैदर नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल में हर इंटरव्यू पे जाने से पहले आपको 2 से 3 घंटे उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट स्टडी करनी चाहिए। Mm-hmm. गूगल पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, उनको स्टडी करके जाना चाहिए। Yeah. वो ही टिपिकल क्वेश्चंस नॉर्मली इंटरव्यूअर्स पूछते हैं और बिल्कुल। आपको 1 से 2 घंटा रिहर्सल जरूर करनी चाहिए। या एग्जैक्टली, सो आई टोटली एग्री विद दैट कि वाकई में आजकल के जो कैंडिडेट्स हैं दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। इवन एज रिक्रूटर्स हम लोग काफ़ी लोगों को बुलाते हैं, यू नो दे कम एंड दे आर रियली लुकिंग फॉर जॉब्स, लेकिन उनको ये भी पता नहीं होता कि वो कहाँ पे अप्लाई करें। दे जस्ट वांट अ जॉब एग्जैक्टली। एंड दे आर लिटरली क्लूलेस कि हमने कहाँ जाना है, वहाँ पे करना क्या है। सो दिस इज अ वेरी बिग गैप। अच्छा, सेकेंडली आपने बहुत अच्छी चीज़ मेंशन की दैट यू प्रोवाइड देम फीडबैक। आई हैव सीन वेरी वेरी लेस पीपल एक्चुअली डूइंग दैट, क्योंकि जो एचआर मैनेजर्स एंड इवन वो होते हैं उनके पास यूजुअली इतना टाइम ही नहीं होता वैसे
कि वो इतना डिटेल्ड कैंडिडेट्स को फीडबैक दे सके जी, ये एंड एक हैबिट है। मैं मिसबा ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं या बोलूँगा बेसिकली एक हैबिट है जो शुरू से इमर्ज हुई है। अच्छा, इसकी सबसे या बड़ी रीज़न मेरे ख्याल में ये है कि या एट द स्टार्ट ऑफ माय करियर आई एक्चुअली यूज्ड टू बी लाइक देम। तो हम्म मुझे उनमें वही अली नज़र आता है कि अच्छा यार, अगर आज इसकी हैंड होल्डिंग ना की या 15-20 मिनट इस कैंडिडेट के साथ ना लगाए, तो ये पता नहीं या कितने आगे इंटरव्यू ज़ाया करेगा। So why बिल्कुल not to stop this candidate right here and give him a candid feedback so that he gets prepared and या then appears in other interviews। और लोग बड़ा appreciate करते हैं इस चीज़ को। बल्कि यस honestly speaking बहुत से लोगों ने मुझे बाद में कॉल बैक करके अपनी शेयर की हैं अचीवमेंट्स कि जी आपने जैसे बताया था हमने वो लाइन अडॉप्ट की और उसके बाद वी वर सक्सेसफुल इन या गेटिंग अ जॉब। अच्छा So that दैट्स actually परफेक्ट gives a very good feeler। Yeah। Yeah, exactly. So, since आपने काफी interviews conduct किए हैं, so what is that one common question जो candidates आप जब पूछे तो majority of the candidates they tend to get it wrong? Yeah, so it happens most of the times Yeah, कि मैं जब लोगों का सीवी सामने रखता हूँ and last time about their objective, ज़ाहिर है हर सीवी पे yeah, एक ऑब्जेक्टिव आ रहा होता है या बिल्कुल. उसमें कोई jargon यूज की जाती है और something about their hobby, so they are not able to answer। And Hmm. then they actually what happens is if I'll ask them Yeah. tell me something about you, ये एक Hmm. क्वेश्चन बड़ा कॉमन है और हर एक से पूछा जाता है। Hmm. So इस क्वेश्चन का आंसर जब इस तरह से स्टार्ट होता है ना, ओके माय नेम इज अली मंसूर, Yeah. सो एक्चुअली लूजेस द इम्पैक्ट। अच्छा, अब मेरे सामने सीवी है, मुझे पता है कि कैंडिडेट का नाम क्या है। Yeah. दिस वेरी स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन, और इसका आंसर हरगिज ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ये नाम है, मेरे फादर ये करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, क्योंकि ये तो सब सीवी में आ रहा है और मैंने देख लिया एज अ रिक्रूटर। Hmm. So this question is basically to know what quality you bring to the table if we hire you, what Right. value you will bring in the organization, and once we hire you, what difference will you make 3 months down the line, 6 months down the line, or maybe 1 year down the line. So Hmm. इसका आंसर अगर इस तरह से दिया जाए ना कि आई एम अ लीडर, I have a very strong emotional intelligence. I have Yeah. overachieved my KPIs in the last organization. And Yeah. if you hire me, I'll add that much percent of business in your organization. Yeah. This is something actually we are looking for when we ask, tell me something about you. Right. So that is So this something is how it very needs to be. important. Yeah. क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स का आपने बिल्कुल सही कहा, दे स्टार्ट विद देयर ओन इंट्रोडक्शन, वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, दे स्टार्ट विद देयर नेम एंड ऑल, वो सारा बताना शुरू कर देते हैं. जी, सो और दे मिसबा या या ये 99% कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम है। मार्केट एग्जैक्टली में किसी को पता ही नहीं, इनफैक्ट ट्रू. इंटरव्यूअर को भी ये नहीं पता कि मैं अगर किसी से ये पूछ रहा हूँ कि टेल मी यस समथिंग अबाउट यू, तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। सो इफ यस यू study great writers, if you हम्म watch YouTube videos of the great mentors, they'll tell you या about the crux of the question and how it needs to be answered। हम हम्म उसी ट्रेडिशनल वे में ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और हम या उसी ट्रेडिशनल वे में उसका आंसर भी ले रहे हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे फादर ये हैं, मेरा एजुकेशन ये है। सो ऐसा नहीं है, ये हम्म ये तो सीवी में है, ये तो मुझे पता चल जाएगा। या बिल्कुल. प्लीज। So, according to you, what role does university and colleges have to play in, actually preparing their graduates for interviews and jobs? And what do you see कि अभी universities, colleges जो चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करी, हालांकि उनको करनी चाहिए. या मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फोकस है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का बिजनेस पे। सो Hmm. आई हैव आल्सो माई सेल्फ बीन लेक्चरर एंड प्रोफेसर इन टू Yeah. ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन लाहौर। Yeah. और वहाँ पे यही देखा है कि आपको 4 इयर्स में या 2 इयर्स में आपके मास्टर्स में ऑर्गेनाइजेशन जो है इंस्टीट्यूट से डंप करते हैं इंफॉर्मेशन। अच्छा, Yes. अब होता ये है कि वंस यू गेट ग्रेजुएटेड Yeah. और व्हेन यू आर अबाउट टू बी ग्रेजुएट, तो Yeah. यूनिवर्सिटी को एम्प्लॉयज को यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को विद द Hmm. प्रोफेशनल पीपल फ्रॉम द मार्केट। व्हाई? बिल्कुल. नंबर वन फॉर सीवी मेकिंग, Hmm. नंबर टू टू गेट देम रेडी फॉर इंटरव्यूइंग स्किल्स, Yeah. नंबर थ्री हाउ टू शो देयर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग इंटरव्यूज। क्योंकि पढ़ लेना या एजुकेशन लेना इज लाइक 95% ऑफ द माइलस्टोन यू हैव अचीव्ड। Yeah. बाकी 5% जो है इंटरव्यू रेडीनेस, अगर बिल्कुल. आप वो नहीं करते तो आप पिछले 95% भी डिल्यूट कर देते हैं।
एग्जैक्टली, और यही हमारे साथ होता है। एग्जैक्टली। एंड कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ पे इंटरव्यू रेडीनेस प्रोग्राम्स चल रहे हो, सो दे आर नॉट जी इवन बिल्कुल भी नहीं। कंसंट्रेटिंग ऑन दिस Exactly. पार्ट। बिल्कुल भी नहीं कर रहे जी। इनफैक्ट मैंने जब कभी स्टूडेंट से डिस्कस किया कि अच्छा हमने ये सेमेस्टर खत्म कर लिया है, आर यू या इंटरेस्टेड इन दीज 2-3 सेशंस, दे वर लाइक सर प्लीज डू इट, दिस इज समथिंग वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। एग्जैक्टली, तो बड़ा लुक फॉरवर्ड टू करते हैं जी। बिल्कुल। सो व्हाट आर द टॉप 3 स्किल्स दैट यू रिकमेंड कि आजकल हर जॉब सीकर के पास होने चाहिए, आल्सो कीपिंग इन माइंड द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19? मिसबा, मेरे ख्याल में जब 13 ईयर्स पहले मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैं तब भी समझता था यही टॉप 3 स्किल्स हैं और आज भी है। ये हम्म, चेंज नहीं हुआ है। सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन। राइट, अगर आपने डिग्री ले ली है, आपने सारी प्रिपरेशन कर ली है, आपने ड्रेसिंग भी अच्छी कर ली है, बट इफ यू कैन नॉट कम्युनिकेट, कैन नॉट या, एक्सप्रेस योरसेल्फ, हम्म, तो आप अपना इंटरव्यू विन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा अगर आप रिहर्सल करते जाएंगे। बिल्कुल, और तीसरी चीज़ है गो गेटर एटीट्यूड। हम्म, एटीट्यूड इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे इंटरव्यूज में इंटरव्यूज जो हैं वो अनकंसर्न नजर आते हैं कि अच्छा यार जॉब मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो। या, वो जो राइट एटीट्यूड है ना, दैट इज एक्चुअली 50% ऑफ विनिंग द इंटरव्यू। तो एटीट्यूड हम्म, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इतना थोड़ा टाइम स्लॉट होता है इंटरव्यू का, लाइक 15 मिनट्स, उसमें या, आप ये कभी असेसमेंट इंटरव्यूअर कर सकता कि आप आएंगे और आके कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे, उसमें हम्म, सिर्फ आपका पोटेंशियल और एटीट्यूड ही देखा जा रहा होता है। तो ये राइट, तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड। राइट। सो वुड इट बी राइट टू से कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कुछ लोग ये भी कहते हैं एम्प्लॉयर्स के अगर उनकी टेक्निकल स्किल्स इतनी स्ट्रांग ना भी हों और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा अच्छी हों तो टेक्निकल चीजें हम इनको खुद सिखा देंगे? दैट्स वेरी ट्रू। आई हम्म, वुड डेफिनेटली सेकंड इट। और इसमें हम्म, लाइक आई सेड कि ये एटीट्यूड वाली बात ही है ना, कि देखिए मैं दूसरे दिन एक द अदर डे आई वाज गोइंग थ्रू अ रिसर्च, और उसमें या, बड़ी अच्छी बात जो है स्पीकर ने बताई। उसने कहा जी व्हेन आई हायर पीपल, या, 80% I focus if the person has a potential and he would be able to progress on senior roles. मैं सिर्फ या, 20% ये देखता हूँ कि मैं जिस रोल के लिए हायर कर रहा हूँ ये कर सकेगा या नहीं। हम्म, तो आप यहाँ से इमेजिन करें कि आपको शॉर्ट टर्म हायरिंग नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, आपका पोटेंशियल देखना right. चाहिए जी। So what is the best answer that you ever got from a candidate? हाँ, बेस्ट आंसर अगेन दिस इज समथिंग Hmm. रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस। और Yeah. मेरे ख्याल में अगर मुझे भी कभी लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल बी यूजिंग दिस स्टेटमेंट टू बी ऑनेस्ट. So, I interviewed a candidate, and during interview, somewhat he sensed that I wasn't convinced. Okay. तो उसने ये सेंस करने के बाद मुझसे पूछा कि जी आप इनडिसाइसिव हैं, एंड आई कैन रीड ऑन योर फेस के प्रॉब्ली यू वांट क्लियर द इंटरव्यू। तो मैंने Hmm. उसे कहा यार जिस तरह एक टिपिकल होता है, मैंने कहा ओके लेट मी लुक इनटू इट एंड आई विल सी व्हाट आई कैन डू। तो उसने Hmm. बड़ी अच्छी बात की। उसने मुझे Yeah. बोला कि जी ये जितनी बड़ी बेट आप लेंगे ना मुझे हायर करने पे, Yeah. उससे ज़्यादा बड़ा रिस्क मेरे लिए है कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूँ या नहीं। उसकी वजह ये है कि अगर मुझे Hmm. आपने हायर किया और मैंने परफॉर्म ना किया, Yeah. यू विल फायर मी एंड यू Hmm. विल हायर अ न्यू पर्सन। बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए हो सकता है बाहर जाके जॉब ढूंढना इतना आसान ना हो, मे बी मुझे 1 साल जॉब ना मिले। Hmm. तो मैं अगर अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आपके पास आना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आई एम फुली कॉन्फिडेंट आई कैन डू दिस। तो वो जो एक स्पार्क मुझे वहां पे उसमें नजर आया ना, Yeah. दैट एक्चुअली मेड इट। So yeah, and then it's indeed a really, really nice answer. This even shows that how serious he is regarding his work. एग्जैक्टली। और आप देखिए, आई इंटरव्यूड दिस गाय अबाउट 6 years ago, मुझे आज भी ये बात याद है। आई Hmm. स्टिल रिकॉल इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज। बिल्कुल, right. So what is the funniest answer that you ever got? फनीएस्ट Yeah. आंसर आई वुड से, यू नो बहुत दफा ड्यूरिंग इंटरव्यूज एट Yeah. रिव्यूज के लोग ये एडमिट कर लेते हैं कि जी Yeah. मैंने तो अपना सीवी बनाया ही नहीं, ये तो भाई ने बनाया था या Oh, नेट कैफे okay. वाले ने बनाया था, या सो Okay. मैं अगर उनसे पूछूंगा जी आपने ये ऑब्जेक्टिव दिया, टेल मी समथिंग अबाउट इट, एंड दे Yeah. जस्ट गो ब्लैंक। तो मैं फिर All उनसे right. पूछता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन समथिंग फ्रॉम द सीवी, अगेन दे विल Hmm. गो ब्लैंक, एंड देन Hmm. एट वन स्टेज दे वुड से जी आई एम सॉरी हमने तो ये सीवी किसी से बनाया था। तो Yeah. जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इस पूरे प्रोसेस में कि सीवी, इंटरव्यू,
इंटरव्यू रेडीनेस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आप समझ लें सीवी जो है ये एक नॉन फिजिकल प्रेजेंस है इन फ्रंट ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के या पास कैंडिडेट के जाने से पहले उसका सीवी जाता है। बिल्कुल और दोबारा बिल्कुल रिसर्च ये बताती है कि 80% इंटरव्यूअर्स जो है वो सीवी देख के डिसाइड करते हैं वेदर टू कॉल द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू और नॉट। या तो अगर हम इसी को राइट सीरियस नहीं लेंगे और हम्म हम किसी नेट कैफे वाले की या बहन भाई अंकल की हेल्प लेंगे और हमें पता ही नहीं या कि सीवी का ऑब्जेक्टिव क्या कह रहे हैं, सो यू नो हम्म ऑब्वियसली वी वोंट बी एबल टू क्लियर इट। अच्छा, और हमें मिलेगा क्या? हमें या मिलेंगी टिपिकल जॉब्स 20,000 25,000 वाली, और फिर हम या कंप्लेन भी करेंगे कि जी मार्केट तो अच्छी जॉब्स ही नहीं दे रही, क्योंकि बिल्कुल आप प्रॉपर रेडी होके नहीं जा रहे। आपका सीवी ही 20-25 वाला है तो आपको 20-25 वाली जॉब मिल जाती है। एग्जैक्टली। तो और ऑब्जेक्टिव में भी ये होता है कि यूजुअली दे जस्ट कॉपी पेस्ट, गूगल से उठाया वही ऑब्जेक्टिव रख दिया। मैं सो आपको बताऊं, आप या यकीन करें कि मैंने एक दफ़ा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटरव्यू किया था और या उसके अंदर एक डॉक्टर का ऑब्जेक्टिव आ रहा था, ओके एंड वी बोथ लाफ्ड जब मैंने उसके सामने पढ़ा वो। उसने भी मुझे या यही कहा कि जी आई एम सॉरी, ये तो नेट कैफे वाले ने या बनाया है। सो hmm दिस इज वन थिंग। yeah, so that gives a really bad impression. I'm pretty sure he didn't make it to the next round even then. ऑब्वियसली दैट्स Yeah, वेरी मच ऑब्वियस। yeah, या right. So we talked regarding, the qualities जो कि इनमें होनी चाहिए, जो skills होने चाहिए. So इसके अलावा let's come to the other part कि according to you कौन सी ऐसी qualities हैं जो कि job seekers में आजकल हैं and you are really happy to see them. Yeah, so the people who are actually coming especially from tier A universities and some of Yeah, the tier B universities, मैं समझता yeah, हूँ कि ये जो fresh candidates हैं या even experienced भी, yeah. एक तो ये they are very sharp, Hmm. they are very logical and rational, इनके Yeah. साथ argue करना difficult, they have reason for everything they are saying। अच्छा, और उसके बाद they are street smart। majority ऐसे candidates होते हैं जिन्होंने अपना एजुकेशन खत्म करते ही व्हेन यू लुक एट देयर सीवी यू विल रियलाइज कि उन्होंने 2-3 कंपनीज में इंटर्नशिप्स की हुई हैं। Hmm. बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। सो मेरे ख्याल में बहुत सारे तो ऐसे मेरे पास फ्रेश ग्रेजुएट्स और जॉब सीकर्स आते हैं कि मुझे लगता है कि मैं आज जिस लेवल पे खड़ा हूँ ये प्रॉब्ली वहां से स्टार्ट लेने लगे। सो Okay. ये 2-3 चीजें, लाइक दे आर शार्प, दे आर रैशनल, दे आर स्ट्रीट स्मार्ट, दीज आर Yeah. एक्चुअली विनिंग देम गुड जॉब्स। So, Ali, हमने काफी job seekers की बात की. So, let's come to those people who are currently working somewhere. So, what do you think कि ऐसी कौन सी qualities हैं जिनके basis पे आजकल जो है लोग promote होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशंस का जो सिस्टम है ना वो बड़ा Yeah. मेजरेबल होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड सिस्टम रिलाय करता है कि अगर एक Hmm. जूनियर को प्रमोट करना है तो मैनेजर अपनी ऑब्जर्वेशन दे देता है कि ये मेरे ख्याल में अच्छा है और ये बुरा है। Hmm. अच्छा, बिल्कुल. कोई केपीआईज नहीं है, कोई स्कोर कार्ड्स नहीं है, कोई क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं है, तो सबसे Hmm. पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को स्कोर कार्ड्स और केपीआईज इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत। और इसी तरह अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जितनी एफएमसीजीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, वो भी यही कर रहे हैं। Hmm. मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी यही प्रोसेस फॉलो कर रही है। सो इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए। दूसरा, एम्प्लॉयज में एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है ना इस स्टेज पे, जब Yeah. स्टार्ट ऑफ द ईयर उनकी गोल सेटिंग नहीं होती है। Yeah. तो अगर जनवरी में आपकी गोल सेटिंग हो जाए और आपका लाइन Hmm. मैनेजर आपको बता दे कि अली मंसूर, Yeah. जनवरी में तुम यहाँ खड़े हो, 6 मंथ्स में दिस इज समथिंग आई नीड फ्रॉम योर साइड, और एक साल में बाय द एंड ऑफ ईयर दिस इज समथिंग आई नीड फ्रॉम योर साइड, ये कर दोगे तो यू विल बी प्रमोटेड। Hmm. ऐसी कोई कंक्रीट डिस्कशन नहीं होती है, चीज़ें ऑब्जर्वेशन Hmm. बेस्ड होती हैं, और साल के एंड में एम्प्लॉय भी डीमोटिवेटेड होता है और लाइन मैनेजर भी, क्योंकि ये Hmm. कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिए गए होते। बिल्कुल राइट. तो So, इन चीज़ों पे अगर आप मेजर करेंगे तो yeah. मेरे ख्याल में पीपल विल नो कि उनको प्रमोट करने के लिए उन्हें क्या करना है, और So लाइन that's a मैनेजर्स को भी पता yeah. होगा कि इस लेवल पे ले जाने के लिए क्या करना है। जी बिल्कुल. So that's a very very important suggestion for all the organizations क्योंकि वाकई में KPIs वगैरह नहीं होते, observations होती हैं. और दूसरी चीज ये भी होता है, would you agree with this कि even your relation with the boss and supervisors matters a lot during promotion? दैट डज। सो Yeah. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेयर थिंग्स आर नॉट मेजरेबल, वहाँ पे Yeah. ग्रीवेंसेस ही ऑर्गेनाइजेशन में ये आते हैं कि जी उसको फेवरिज्म दे दिया, फेवरेटिज्म उसको दे दिया, मैं तो पूरा साल काम करता रहा लेकिन उसका रिलेशन अच्छा Hmm. था, जस्ट बिकॉज थिंग्स वर नॉट मेजर्ड। और Hmm. ये डिलेमा तो मेरे ख्याल में Yeah. हमारी मेजॉरिटी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस में तो ये प्रॉब्लम है। यू टॉक अबाउट बिल्कुल. एजुकेशनल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, Hmm. एफएमसीजी, हर जगह इशू चल रहा है।
राइट। सो अच्छा, दो तरह की गोल सेटिंग, एक तो गोल सेटिंग के फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन की साइड से भी नहीं होती, और फिर सेकेंडली जो इंडिविजुअल्स खुद हैं वो अपने लिए भी गोल सेटिंग नहीं करते कि आज से 2 साल बाद मैंने यहाँ इस पोजीशन पे होना है, उसके लिए व्हाट शुड आई बी डूइंग। एग्जैक्टली और मेरे ख्याल में ऐसी स्टेज पे अगर वो अपने लाइन मैनेजर से हेल्प लेना, या तो ऑब्वियसली उसका विजन उससे ज्यादा है, बिकॉज ही इज द मैन हूज एक्चुअली लीडिंग द डिपार्टमेंट और मे बी रनिंग द बिल्कुल टीम। तो बिल्कुल। वो डिस्कशन अगर आप करेंगे तो यू विल डेफिनेटली कम टू नो कि मुझे एक सर्टेन लेवल पे जाने के लिए ये 5 स्टेप्स ट्रेवल करने हैं, और यू नो दिस इज हाउ इट इज। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो Ali, do you have any other comments or suggestions for the job seekers here? आई डेफिनेटली डू मिसपा। यू Yeah, नो एक तो ये कि जो करंट सिचुएशन चल रही है, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट दिस पेंडेमिक। yeah, मेरी एक एडवाइस तो ये है कि अगर आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन आपको वैल्यू कर रही है, yeah. स्पेशली इन 2020, डोंट Hmm. मूव। Hmm. क्योंकि बाहर मार्केट जो इट्स वेरी अनसर्टन, सो वेरी लाइकली द चांसेस आर इफ यू मूव फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, यू विल एंड अप Yeah, इन सम एडवेंचर। yeah. आप तब तक ना छोड़ें जब तक आपको छोड़ने को नहीं कहा जा रहा। सो कीप कंटिन्यूइंग एटलीस्ट फॉर 2020 इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। Right. दूसरी चीज मिसबा बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने भी बड़ी जगह सुना होगा कि हमें ना अपस्किल करने की बड़ी ज़रूरत है। Yep. For example, world is changing so rapidly. People are talking about virtual reality, augmented reality, Internet of Things, blockchains, बिल्कुल. big data. तो हमें इन सारे ट्रेंड्स की ओरिएंटेशन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ये चैम्प होने चाहिए, बट हमें Yeah. ओरिएंटेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट जब दो लोग बातें कर रहे हों, Hmm. आई शुड नो व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। और फिर मुझे ये भी देखना है कि अगर मुझे इनकी ओरिएंटेशन है, मुझे इनके बेसिक्स पता है, तो मैं अपनी करंट जॉब में इनको कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल. ठीक है। सो यू नो एक रिसर्च ये बताती है कि अगर आपने लेटेस्ट ट्रेंड से खुद को एब्रेस्ट Hmm. करना है, तो यू नीड एटलीस्ट 7 years और 10,000 hours। Okay. तो इसका मतलब है हम ये नहीं कर Yeah. सकते हैं, बट हम ओरिएंटेशन तो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल. तीसरी चीज जो एक बड़ा यू नो एक डिलेमा है, और आई अदर डे आई वाज गोइंग थ्रू अ रिसर्च अगेन। Hmm. इस वक्त फेसबुक के ऊपर ग्लोबली 1.9 बिलियन यूजर्स हैं, Hmm. जबकि लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ 250 मिलियन यूजर्स हैं। तो Okay. आपको यहाँ से पता चलता है कि लोग अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसा Hmm. कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल. तो ज़रूरत Absolutely. इस चीज़ की है कि हम इंस्टा और फेसबुक जैसी चीज़ों या प्लेटफॉर्म्स पे अगर प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे और सिर्फ टाइम Yeah. वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर पे स्विच करें Hmm. टूवर्ड्स ट्विटर, पिंटरेस्ट, टूवर्ड्स लिंक्डइन, और अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग करें, बिकॉज अल्टीमेटली यही हेल्प करेगी हमें। तो ये Exactly. तीन चीज़ें, एक तो डोंट मूव इन 2020 if your organization values you, number two upskill Hmm. yourself, number three do some professional grooming through professional platforms. That's important. Right. So, Ali, we got some really useful insights from you. So, specifically, just summing it up, so आपने बात की मीटिंग ऑन गोल सेटिंग्स पे, कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में ये मीटिंग्स होनी चाहिए गोल सेटिंग्स की, ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉयज को कन्वेस कर सके कि अगर आप लोग यहाँ तक ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं, स्पेसिफिक टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, तो उनके बेसिस पे आपकी प्रमोशन हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड, Right. एम्प्लॉयज को भी अपने लिए जो है टारगेट्स करने चाहिए, अपस्किल करना चाहिए, so that they are able to get better jobs in the market. They Very then true. secondly, कि उनको self learning करनी चाहिए. They should be aware regarding the latest happenings around the globe, and then they should Exactly. be able to extract कि उनमें से क्या चीज अपने organization में जो है वो apply कर सकते हैं, ताकि उनकी organization को help हो to achieve their targets and goals. Secondly, इसी से उनकी organization को further, you know, innovation में भी help होगा if they have bright-minded people, you know, who are really eager to learn more. So एक उससे Exactly. अच्छा impression भी पड़ता है, and lastly उनकी इसी के basis पे promotions के भी ज़्यादा chances होते हैं. So the That's more very true. active, self-motivated, self-learned a person is, the better the chances of success of that particular person. फिर हमने बात That's की very प्रोडक्टिव वर्क के बारे में, बिल्कुल जितना ज़्यादा यू नो यही सारी चीज़ें होंगी दैट एट द एंड लीड्स टुवर्ड्स मोर प्रोडक्टिव वर्क। हमने बात की कम्युनिकेशन की, कॉन्फिडेंस लेवल की, द यू नो द एटीट्यूड ऑफ द गो गेट एटीट्यूड। सो ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज इवन आई हैव सीन सो लेस पीपल, ये गो गेट एटीट्यूड बहुत ही कम लोगों का होता है। that's very true.
So एक ये चीज है that we need to incorporate this in ourselves. एक चीज अली ये बता दें कि ये go get attitude का हमारे previous even podcast में इसमें काफी बातें हुई कि ये self motivation, ये attitude होना चाहिए. So what would you suggest कि ये attitude कैसे आता है एक इंसान में? एटीट्यूड जो है ये बेसिकली तो बिल्ट इन होता है, लेकिन रिसर्च बेसिकली एटीट्यूड क्या है? एक तो चीज़ है कि आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप नीडी हैं और आप हर जगह जाके ये पोर्ट्रे करेंगे कि यू कैन डू इट। Yeah. ये तो नेचुरल है, लेकिन अब रिसर्च ये बताती है कि एटीट्यूड इज समथिंग व्हिच एक्चुअली कैन बी बिल्ट एज वेल। अब ये आपने करना कैसे है कि Yeah. सबसे पहली बात कि आपको पता हो कि आप जिस रोल पे जा रहे हैं वो एक्चुअली डिमांड क्या कर रहा है। अगर आपको पता है कि इस रोल की ये 5 डिमांड है Yeah. और मेरे पास इससे रिलेटेड ये 5 स्किल्स हैं, तो आप ड्यूरिंग इंटरव्यू मैच कर सकेंगे इंटरव्यूअर को कन्विंस करने के लिए कि आई एम द फिटेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू पोर्ट्रे द एटीट्यूड कि यार ये एटीट्यूड मुझे चाहिए। जिस तरह से इसने लिंक किया है इस जीडी के साथ, मेरी रिक्वायरमेंट के साथ, अपने स्किल सेट को, दिस इज Yeah. समथिंग आई एम लुकिंग फॉर। Yeah. So it's a basically combination of, like I said earlier, communication, confidence and attitude. अच्छा, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी वजह ये है कि attitude is something which is observed, it is not measured. इसका मतलब ये है कि ये कब आएगा? अगर आप ये पोर्ट्रे कर सकेंगे, ये कॉन्फिडेंस दिखा सकेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका प्रोडक्ट नॉलेज मेरे पास है, मैं जो कमिट कर रहा हूँ कि मैं ये कर सकूंगा, मैं वाकई कर सकूंगा, यही चीज मेजर करेगी ना एटीट्यूड। बिल्कुल। तो इसके लिए दोबारा वही बात फ्रॉम वेयर वी एक्चुअली स्टार्टेड, रिहर्सल, प्रिपेयर्डनेस। इमेजिन करें कि एक बंदे को पता ही नहीं कि मेरे से इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, लाइकली Yeah. what आंसर्स आई विल बी गिविंग। वो हो सकता है कम्युनिकेशन भी लेकर जाए, कॉन्फिडेंस भी लेकर जाए, लेकिन Yeah. एटीट्यूड पे ना इम्प्रेस कर सके, बिकॉज द पर्सन विल बी अपेयरिंग लाइक अ हॉलो इंटरव्यू जिसको कुछ नहीं पता है, हवा में बातें हो रही। तो ये बिल्कुल। चीज नेचुरली फिर आप में बिल्ट इन हो जाती है अगर आप प्रिपेयर होकर जाए। Exactly. अच्छा, इससे एक और चीज कि even we have so many interviewers who come to us and when we ask them कि why do you need this job, so उनकी एक ही काफी कैंडिडेट्स हमें एक रिस्पॉन्स देते हैं and that is कि भाई हमारी नीड है and हमारी फैमिली के कुछ ये ups and downs चल रहे हैं, so we need that, ये वो, and they come towards the emotional side. जी, So rather जी। than talking regarding why the organization should take them and talking about their skills and ability, वो एक emotional touch देना शुरू कर देते हैं। मैं आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग हियर कि अब Yeah. हम जिस टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं ना, इमोशंस की वैल्यू बहुत कम हो गई है, एंड वेरी सून ऑर्गेनाइजेशंस वोंट बी फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स। बल्कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने तो ये कह दिया है कि एक मार्केट है स्पेन Yeah. में एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोल दिया है कि आपने इंटरव्यूअर से उसके पर्सनल सर्कमस्टांसेस, Yeah. उसकी लास्ट राउंड सैलरी भी नहीं पूछनी। आपने Okay. उसी वक्त देर एंड देन इवैल्यूएट करके डिसाइड करना है कि कैंडिडेट की वर्थ क्या है। All right. All right. ये दिस इज हाउ दिस इज वेयर एक्चुअली द वर्ल्ड इज मूविंग। सो गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी इमोशंस कहीं कहीं जॉब लैंड कर सकते हैं, आपको हो सकता है इंटरव्यू को आप टच कर जाए, Yeah. इमोशनली, बट इट्स नॉट गोना वर्क एवरी टाइम। बिल्कुल। So true. बिल्कुल। चलिए अली, thank you so much for your time. It was absolutely great to have you for the Job Seekers podcast. We had some really, really useful insights, and I believe the job seekers are also going to benefit from this a lot. Likewise, Misbah, thank you very much for your time, and thank you for considering me for this opportunity, and I hope to stay connected in the future as well. And बिल्कुल। we can exchange information two ways and could be इंशाल्लाह। beneficial for each of us. Yeah. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलिए अली, thank you so much once again. Bye bye, खुदा हाफिज, and stay safe.